So today we have seen some unit 4 and decision making part, right? How to make decision and why we take decisions and all. Yes. So today we have seen how we make decisions. Excellent. Yes. So there is models of decision makings and different kind of models we have used. Means different organizations. Yesterday we are talking the different sectors, how they are making decisions: doctor, engineer, lawyer, chartered accountant, any kind of fields. Okay, they prepare a plan and they implement. They have to use 4 steps, means different kind of steps to fulfill, to complete their plan. If you make a proper decision, if you prepare a plan with well decision, definitely it will successful. So models of decision making, first is the rational model. We have seen what is exactly Simon's normative models. Different authors, experts make models and they think about that. If HR person is there, so HR is use that kind of model to fulfill their plan, to fulfill their activity, daily reports and all and all. So dynamic of decision makings, we have seen here contingency model of decision making, improving decision making, general decision making styles, escalation of commitment and creativity. A lot of time we committed people, yes, will do this or will give you that kind of product or whatever. But obviously commitment and the fulfillment इज इम्पोर्टेंट. अगर आप किसी को कमिट करते हैं तो मतलब है कि आपको उसको देना ही है. डजंट मैटर आपके पास टाइम नहीं है, आपने क्या डिसाइड किया है, कैसा प्लान किया है, डजंट मैटर. बट इफ यू कमिटेड कि इस टाइम को मैं आपको ये दूंगी, तो आपको वो कमिटमेंट फुलफिल करना है. क्रिएटिविटी. ओके, सो वी हैव सीन group decision making is also important. So advantages and disadvantages of group decision makings, we have seen participative management, what it is exactly, when to have group participate in decision making, the room, ये tone, ये सारे models हैं. Group problem solving techniques. Okay, तो a lot of authors के जो models है वो हम देखेंगे कि why they are making this model, what actually is it. So rational model of decision making, what it exactly? I am audible to everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Good. So rational model decision making is it consists a structure of 4-step sequence. What it is? Yesterday we have seen identify the problem, generating alternative solutions, selecting a solutions and implementing and evaluating the solution. That is called the rational model. Okay, in exams you ask the questions, write the definition of rational model or what is rational model and what is the 4 steps of rational model. So you need to write down like that: identify the problem, generating alternative solutions, selecting a solution and implementing and evaluating the solution, right? First, if I am telling you ki yes guys, tomorrow we have conducted a test, unit test or what like that, and it's MCQ test. So what you do, unit 1, if I am telling you ki tomorrow we'll taking a unit 1 test, so what you did, you just read unit 1, whatever we shared with you, every aspects, and then you prepare and just tomorrow you just fulfill the test. And what time, on that time you just read the questions carefully and you select options, you think what it is exactly, right? And first you read the questions very well, means the first fulfill identify the problem, means you just identify what is exactly ask these questions, right?
then generating, then you just search the options, which one is good, ये हो सकता है क्या, ये हो सकता है क्या, you are know the KBC, everyone know, right, कौन बनेगा करोड़पति. So they have really time limits, and the questions ask different kind of areas, means specially the area already choose, मतलब पूछा जाता है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है, but general and specific both are there. So after that you selecting two options and then you decide कि which one is good, ये है कि वो है, right? So that is the rational model. So means अगर आप इस वे से if you use this kind of method to solve problem, डेफिनेटली यू पास इट. कभी कभी हमारे तुक्के भी सही हो जाते हैं, है ना, बिकॉज हम हमारा जो सोचने का तरीका होता है ना कि नहीं ये होना चाहिए. सो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. और इस वे से अगर आप स्टडी करते हैं, इस वे से अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. गॉट इट? सो रैशनल मॉडल ऑफ डिसीजंस में ये सारी चीजें आती है, इसे आप अच्छे से रट लीजिए. ठीक है, ये हो गया आपका रैशनल. एनीवन वांट टू आस्क क्वेश्चन रैशनल मॉडल, रिगार्डिंग रैशनल मॉडल? ऑर्गेनाइजेशंस में यही होता है, अगर आपको कोई टास्क दिया है तो आप पहले ही बोल देते हो हाँ मैं कर लूंगा या मुझे आता है, लेकिन जब आप उसे करने बैठते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो. यू डोंट थिंक कि मैं इसे स्टार्ट कैसे करूँ, कहाँ से लाऊं डाटा, कौन मुझे देगा, है ना. तो ऐसा मत करिए. सबसे पहले तो आप फाइंड करिए कि कहाँ से क्या मिलेगा, एंड आफ्टर दैट यू वर्क आउट इट एंड देन फाइंड द सॉल्यूशंस. And then after getting solution you just start on your work implementing and evaluating the solutions, right? उसे elaborate करिए, उसको proof करिए, उसको cross check करिए and all. Next, Simon's normative model of decision making, what it is? It's based on the notion of bounded rationality. मतलब हमने जो rational problems देखे उसी से bounded है. Is that decision makers face a variety of constraints. A variety of constraints, सही बात है, बहुत सारे होते हैं options ना. So decision making is characterized by limited information processing. Second one, use of judgmental heuristics, means rules or shortcuts. Okay, and satisfying, right? So जो normative model है वो it's a depend on rational models. Okay, अगर आपका rational decision सही है, आप अगर उस वे से उसे सोच रहे हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, so it's a डिसीजन मेकर फेस अ वेराइटी ऑफ कॉन्स्टेंट. जब आप दो ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो उसमें आपको बहुत फेस करना पड़ रहा है कि विच वन इज बेस्ट. डोंट डिसाइड व्हाट इट एग्जैक्टली, बिकॉज समटाइम्स जरूरी नहीं है कि हम सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करेंगे. मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट लिया था ऑन द टाइम ऑफ इंडक्शंस. लॉट ऑफ पीपल आर नॉट कंडक्टेड, लॉट ऑफ पीपल. मैंने सबको मैसेज भी किया, सबको ये भी किया, बट जिन्होंने भी किया उन्होंने काफी अच्छा किया है. रिजल्ट्स आपको पता चलेंगे ही थोड़ी देर में, थोड़ी दिनों में. तो वो कैसा था आपका, एकदम सडनली टेस्ट था, है ना. तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ऑर्गेनाइजेशंस में या कोई भी टास्क करते हो, तो उस टास्क को करने के लिए कभी कभी आपको बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता है. जैसे डाटा नहीं मिल रहा है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, राइट. समटाइम्स डिसीजन मेकिंग जो होता है वो मतलब लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है आपके पास और उसको आपको इलेबोरेट करना होता है. फॉर एग्जांपल एचआर पर्सन जो है, एचआर पर्सन को एक शीट दी जाती है कि ये सारे एम्प्लॉयज की शीट्स है 20 to 25 और आपको इस पे वर्कआउट करना है, इसका एनालिसिस करना है और इसका मुझे रिजल्ट देना है कि कौन अच्छा वर्क कर रहा है क्या नहीं. सारी शीट उसको दे दी. लेकिन उसने जब फाइंड आउट किया, वो शीट में डेट था, उस शीट में सीरियल नंबर था, उस शीट में नेम ऑफ एम्प्लॉय था, डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय था, देन उसमें उनका अटेंडेंस था एवरीवेयर. लेकिन जब उसने पूरा चेक किया, जब वो जो भी कैलकुलेशन वो कर रहा है उसे ध्यान में आया कि अरे इसने परफॉर्मेंस दिया ही नहीं है, इसमें एज फैक्टर दिया ही नहीं है, इसमें इनका कब आया कब गया बंदा, ओडी वगैरह का डिटेल्स ही नहीं है. सो ही कंफ्यूज्ड एंड ही फेस हाउ टू सॉल्व इट. वो थिंक कर रहा है कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूं, कहां से लाऊं डाटा, किसे बोलूं मैं. सो
at that time you didn't think a lot, you just go to your manager or HOD and tell him the problem ki sir, yes, you are telling me we need to solve this, but how could we, the information is not here or not mentioned here, some lack of information, we couldn't elaborate this, we couldn't analysis this, right? So discussions is important. If you don't discuss, how you solve the problem, right? So you of judgmental heuristic, that time ये आपको यूज करना है एंड कोशिश करिए कि ऑन दैट बेसिस आप क्या प्रूव कर सकते हैं. समटाइम्स हमें एग्जाम देनी होती है ना, वो हमें जज करते हैं सामने वाला कि ये क्या देख रहा है, इसमें सही में इसको आता है कि नहीं जज करना, ये प्रॉब्लम्स फाइंड कर सकता है कि नहीं. अगर आप मतलब रियली इंटरेस्टेड है उस जॉब में, तो डेफिनेटली आप फाइंड करेंगे उसमें रियली सारी इंफॉर्मेशन है कि नहीं, वो चेक करेंगे एंड ऑन दैट बेसिस पे आप उसे सॉर्ट आउट करेंगे. या फिर नहीं है तो आप डायरेक्ट इन्फॉर्म करोगे कि सर ये डाटा नहीं है इसमें, सो ये डाटा नहीं होने की वजह से मैं ये इसे इलेबोरेट नहीं कर सकता, इसे मैं एनालिसिस नहीं कर सकता. गॉट इट? नाउ सेटिस्फैक्शन. सो मतलब आपने जो भी डाटा मिला है या उस पर वर्कआउट किया है, तो उस वर्क को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, उसके रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव आते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट मतलब एक सेटिस्फैक्शन आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, राइट? दैट इज द नॉर्मेटिव मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग. चेक करिए कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है, जैसे मैं आपको लोगों को बोलती हूँ कि नहीं आप ये सारे वर्कशॉप है या ये कुछ पेपर्स है, आपको इस पे वर्क करना है. सो व्हाट यू डू फर्स्ट, आप उसे पढ़ते हो. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ रिटन रेड इट. तो पढ़ने के बाद आपको लगता है कि और इसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है क्या, और उसे मतलब डीप डीप में जा जाके फिर उसका सॉल्यूशंस निकालते हैं. फाइनली यू विल सिलेक्ट सम टॉपिक्स एंड यू वर्क आउट ऑन दैट, राइट? सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, बोथ हो गया, रैशनल हो गया, नॉर्मेटिव हो गया. नेक्स्ट वन, जजमेंटल और ह्यूरिस्टिक्स मीन शॉर्ट्स एंड रूल. मतलब हम लोग क्लास yesterday मैंने बोला था कि अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है एज पर द रूल, सो यू हैव टू यूज योर ओन स्किल्स. आप सोचिए उसमें कि आप अपना कुछ एक्स्ट्रा उसमें लगा सकते हो क्या. ठीक है, सो यहाँ पे जजमेंटल ह्यूरिस्टिक्स मींस अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स, अ डिसीजन मेकर्स टेंडेंसी टू बेस डिसीजंस ऑन इंफॉर्मेशन दैट इज रेडिली अवेलेबल इन मेमोरी. है ना, कभी कभी हमारा जो ब्रेन है, जैसे मैथ्स जो एक्सपर्ट होते हैं या कॉमर्स में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बैलेंस शीट्स वगैरह, नॉट अ जोक, बहुत एक भी आइटम इधर उधर हो गया ना तो पूरा सत्यानाश हो जाता है बैलेंस शीट का, सीरियसली बताती हूँ. सो ऑन दैट, उसके लिए आपको बहुत प्रिपेयर होना होता है, बहुत स्टडी करना होता है, सारे रिपोर्ट्स पहले ही प्रिपेयर होने होते हैं, सारे आइटम्स ऑन दैट प्लेस पे होने होते हैं. अगर आपने पता चला आपने सब कैलकुलेट किया और डेप्रिसिएशन ही रह गया, तो फिर से आपको बैक जाना होगा, फिर से P&L, फिर से आपके जो पूरे है कैश फ्लो फंड फ्लो सारे फिर से बनाने होते हैं. सो जस्ट रेडिली मीन्स ब्रेन जो है ना आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए जब भी आप काम करते हो. लॉट ऑफ टाइम वी हैव lots kind of thoughts in our mind, but just keep inside or outside and just focus on your work. तभी तो perfection आएगा काम में ना. Always judge yourself when you do anything. काम होने के बाद में भी आप उसे चेक करिए कि आपने जो किया है वो सही है कि नहीं, राइट? So that is availability heuristics की a decision makers tendency to base decision on information that is readily available in memory. कंप्यूटर में भी आप या आपके पास इतना सारा डेटा होगा, पहले का पिछले का, जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, जो भी स्टडी कर रहे हो, वो कितने आपकी मेमोरी में है, इतने सारे लेक्चर्स आपके हो रहे हैं. कौन सी फैकल्टी क्या पढ़ा रही है ना, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, ये सारी चीजें आपके माइंड में हो रही है कि यस दिस वन इज रियली गुड इलेबोरेट दैट काइंड ऑफ टॉपिक. सो ये सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, खुद को जज करना आना चाहिए कि यस विच वन इज बेस्ट, क्या उसमें नहीं है और मुझे क्या पढ़ना है एक्चुअली, राइट? सो ये सारी चीजें जजमेंटल ह्यूरिस्टिक्स में आती है. शॉर्ट रूल्स को फॉलो करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ उसके, ताकि आपको अच्छे से याद रह सके. देन
representativeness heuristics. What it exactly? The tendency to access the likelihood of an event occurring based on one's impression about similar occurrences, right? The tendency to access the likelihood of an event occurring based on one's impressions about similar occurrences. Sometimes it's happened ना कि आप एक ही शीट कल कैश फ्लो बनाया था, आज भी कैश फ्लो बनाया परसों, so definitely the daily work is routine work है ना. So routine work में क्या हो जाती है, आपको टेंडेंसी आदत बन जाती है, and you just पहले दिन मिस्टेक, सेकंड डे मिस्टेक, थर्ड डे, then if you are habitual, if you used to this thing, सो डेफिनेटली आपका बेस बन जाता है, आपका बैलेंस, देन आपका मिस्टेक्स नहीं होता, क्योंकि आपको वो पता चल गया है कि कैसे बनाना है शीट्स, राइट. एवरीडे आपका भी जो रूटीन वर्क है उसे आप डेली फॉलो करते हो, मॉर्निंग वॉकिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग, उसे आप चेंज नहीं करते हो. सो इट्स अ टेंडेंसी, राइट. वो टेंडेंसी हो जाती है, एंड आफ्टर दैट यू आर परफेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीजन, कि उसमें आपको बार बार डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू यूज्ड टू, आप हैबिचुअल हो चुके हो, है ना. सो सिमिलर मतलब सिमिलरिटी होती है सब चीज में, तो उसे आपको बच्चों को भी हमें बार बार बोलना नहीं होता है. एक बार अगर हमने उन्हें बोल दिया कि नहीं, यू हैव टू रेडी ऑन दैट टाइम, सो ही और शी डू इट. ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है, मतलब जो रेगुलर रूटीन वर्क है उससे अगर आप यूज टू हो गए तो आपको बार बार नहीं बोलेंगे. अगर समटाइम्स अगर आप कोई काम कर रहे हो, सडनली उन्होंने बोल दिया कि इसे काम को स्टॉप करके इसे करो, सो दैट टाइम वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज रूटीन वर्क को साइड में रख के नया काम करना है, मतलब फिर से नया डिसीजन, फिर से नया प्लानिंग, फिर से नई एक्टिविटी, फिर से सोचना, फिर से उस काम को टाइम पे करना, साथ में रूटीन वर्क भी करना है, राइट. सो दैट टाइम रियली, बट यू हैव टू प्रूव इट कि यस, इसे भी मुझे करना ही है. सो यू मैनेज, यू बैलेंस द टाइम, राइट. सो ये करना होता है. नेक्स्ट, this is satisfactory choosing a solution that meets a minimum standard of acceptance. जब आपको आपका काम हो जाता है ना, तो सॉल्यूशन मिल जाता है आपको, तो डेफिनेटली आपका जो वर्क है वो कम टाइम में होने लगता है ना फिर, क्योंकि यूज टू होने की वजह से, है ना. तो यहाँ पे सही कहा है उन्होंने कि चूजिंग अ सॉल्यूशन दैट मीट्स अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेंस. अगर एक बार आपको सॉल्यूशन मिल गया तो आप को भी एक सेटिस्फेक्शन आता है कि यस, लास्ट टाइम मैंने ये इस पे ऐसा वर्क किया था, तो आपको प्रैक्टिस होती है, आपके माइंड में रहता है कि मैंने कहाँ से कैसा डाटा लिया था और क्या क्या फॉर्मूलाज और वॉट एवर यूज करके उस सॉल्यूशन को निकाला था. क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में तो ये तो प्रैक्टिस होती है, और एवरी ईयर आपको ये करना होता है. हाँ, सम काइंड ऑफ रूल्स आर चेंजेस है, सॉरी, टैक्स रूल्स चेंज हो जाते हैं, फाइनेंस का जो रूल्स है वो एवरीडे चेंज होता है. तो जस्ट कीप इन योर माइंड कि क्या चेंजेस आए हैं और उसे कब से इम्प्लीमेंट करना है. अगर उन्हें बोल दिया कि 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट करना है, तो डेफिनेटली आपका सब चेंज होगा और उस रूल को फॉलो करोगे. तो जस्ट सम काइंड ऑफ, जैसे लीगल्स में, लॉ में भी बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स आते हैं कि आज से ये रूल लागू होगा, ये. सो ओनली दैट काइंड ऑफ रूल्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड एंड यू फॉलो इट. जब तक आपके पास ऑर्डर नोटिफिकेशन नहीं आता कि ये आपको करना नहीं है, तब तक आप नहीं करोगे, आप यू पुराना ही रूल्स जो है वो फॉलो करेंगे. तो मैनेजमेंट में भी वही होता है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली यू आर एक्सपर्ट इन दैट, यू लर्न फ्रॉम दैट कि हाउ वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेन सेम टास्क यू गेट, सो यू विल यूज सेम फॉर्मूला. दैट टाइम यू, मतलब आपको दिमाग में रहता है कि ये काम को मैंने इस स्टाइल से किया था, तो अभी भी मैं उसी स्टाइल से करूंगा. एंड पीपल आर देयर, सो दे आर हेल्प यू, दे आर कोऑपरेटिव. नाउ, improving decision making through effective knowledge and management. Anyone want to ask questions? समझ में आ रहा है? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay, thank you. So improving decision making
through effective knowledge and management. So there is a systems, every organization, everywhere there is a system, and we need to follow that kind of system. हमें rules को ही follow होता है. जैसे अगर आप law कर रहे हो या फिर लीगल सिस्टम में काम कर रहे हो, लीगल सिस्टम में, तो वहां पे आपको डिसिप्लिन रूल के साथ ही जाना होता है. अगर वो रूल में बैठ रहा है तो ही वो इलिजिबल है, अदरवाइज वो इलिजिबल नहीं है ना. बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे रोल्स, बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, और हमें उस रूल के हिसाब से उसे उसमें वर्क करना होता है. तो फॉलो द सिस्टम. यहाँ पे दिया है इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग थ्रू इफेक्टिव नॉलेज मैनेजमेंट. How we improve the decision making, what kind of books we read, which person's formula we use ना. जैसे हम लोग, हमारा दिमाग नहीं चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, साइमन का मॉडल पढ़ेंगे, है ना, रैशनल मॉडल पढ़ेंगे कि यस अगर उस मॉडल को पढ़ने से अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो व्हाई नॉट. सो मैनेजमेंट में भी अगर हमें ये सारे डिसीजंस लेना है तो हमें नॉलेज, हमारा जो नॉलेज है वो इफेक्टिव नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में. पढ़ अभी अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड है, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल काम दे दिया तो आप करेंगे क्योंकि आपको पता है कि क्या क्या करना है. आपने टर्म्स, आपने वो सारे वर्ड्स पढ़े हुए हैं, रेशो, बैलेंस शीट्स, एसेट्स, लायबिलिटी, है ना, प्रीपेड, पोस्ट पेड, ये सारी वर्ड्स तो सेम वही होता है, बट यू नीड टू इम्प्लीमेंट. अगर आपको नॉलेज है तो आप कोई भी सिस्टम, एचआर में भी मैक्सिमम बहुत सारे मॉडल्स पे वर्क होता है. एचआर लोग जो करते हैं वो कैलकुलेशंस जो होते हैं उनके, तो उनका भी एक सिस्टम होता है, एप्स होते हैं उनके. उस ऐप तो अभी अभी यूज करने लगे हैं, लेकिन वो भी मॉडल्स पे ही वर्क करते हैं. हायरार्की मॉडल्स क्या है और ओबी का मॉडल्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एम्प्लॉय को क्या, तो उस वे पे ही और उसी को फॉलो करके वो सारी चीजों का रिजल्ट्स आता है. अपने मन से हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला वी नीड टू यूज देयर, राइट. सो ये फॉर्मूलेज वगैरह सारे मॉडल्स में सारे जो पर्सन्स ने बनाए हुए हैं उसी सिस्टम को फॉलो. जैसे हम लोग एसएपी सीख मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसका सिस्टम जो है वो एक क्या है, बेसिक सिस्टम है. उसमें अगर हम वही इंफॉर्मेशन डालेंगे, वैसे ही डालेंगे, राइट, जो क्राइटेरिया है उसी हिसाब से डालेंगे तो ही रिजल्ट्स मिलेगा, है ना. गलत अगर डालेंगे तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा. सो सिस्टम एंड प्रैक्टिसेस दैट इंक्रीज द शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. डेफिनेटली अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात यही बताऊंगी कि एक्सक्यूज मी, जब भी हम कुछ नई चीज सीखते हैं, whatever the things we practice, so you just share it, right. If you are a new employee, you are a fresher and you learn something new in a training, so you just share in your colleagues. If anyone don't understand, you know, everyone is not good in their work, so you just share it, you just share your knowledge, you just share your style, how to work it, and how to how results comes. So it's improve your knowledge. Sharing से knowledge बढ़ता है, ये definitely है. And believe practical work. Book knowledge is most important because without book knowledge you don't get experience, right. So book knowledge gives you the basic, clear your basic concept, what it exactly. But practical knowledge improve your confidence, improve your work style, increase your knowledge, right. So always wherever you working, wherever whomever with working, किसी के भी साथ आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उसे शेयर करो कि ऐसा नहीं ऐसा है, अगर ये वैसे करेंगे तो ये जल्दी होगा. हेल्प देम, सपोर्ट देम, राइट. एंड शेयरिंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर वर्क प्लेस. अगर फाइनेंस में आप स्टाफ में काम कर रहे हो तो फाइनेंस में इतने सारे पीपल है, तो उनके साथ बैठ के उनका शेयर करो, आपका शेयर करो, उनसे लो. सो दैट इज गुड. ओके, सो इट्स इम्प्रूव योर नॉलेज एंड वर्क जो है वो क्या होगा, ऑन टाइम पे फुलफिल होगा. नाउ टाइप्स ऑफ नॉलेज, उसमें अभी दिया है टैक्टिक नॉलेज, हमने ऑलरेडी देखा था. इंट्यूशन, एक्सपीरियंस, राइट, नेचुरल एबिलिटीज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज.
So tactic knowledge means sorry, tactic knowledge like that कि you use your brain कि किस वे से हमें ये करना है. शिफ्ट्स होती है बहुत सारी एंड उसके रिजल्ट्स अगर आपको पॉजिटिव चाहिए तो प्रैक्टिस होनी चाहिए. जिनका भी एडवांस एक्सेल्स, जिनको भी एक्सेल्स पावर पॉइंट अच्छा आता है तो वो लोग अगर वर्क कर रहे हैं अभी भी तो डेफिनेटली दे विल गेट गुड रिजल्ट्स. मींस फास्ट स्पीड भी होती है तो फटाफट करते हैं. जिनका नहीं है मैं उनको बोलूंगी कि जस्ट इम्प्रूव योर एडवांस एक्सेल नॉलेज. डू प्रैक्टिस एवरी डे. use formula, use VLOOKUP and all. Keep practicing. So you will get a good results every time and you used to it. So any organization wherever you went or going, so it's not difficult to identify or to solve problems. Okay, so it's most important. So tactic knowledge is most important because improve um, what like that organizations work, right? So you work very systematically. अगर आपके पास वर्क है, अगर नहीं है तो आप सीधा बोल दो कि नहीं होगा या फिर नहीं समझ में आ रहा है. यू नीड ट्रेनिंग. फिर उनको लगता है कि नहीं आपको ट्रेनिंग देना है तो वो ट्रेनिंग देंगे. बट इट्स इम्पोर्टेंट, राइट? इंट्यूशन व्हाट इज लाइक दैट कि जब भी हम काम करते हैं, है ना, एनी काइंड ऑफ वर्क, सो दैट टाइम वी नीड टू आर फुल फ्लेज मीन्स पूरा कंसंट्रेशन उस पे होना चाहिए. पूरा फोकस उस वर्क पे होना चाहिए. देन एक्सपीरियंस, काम करने से हमें एक्सपीरियंस गेन होता है कि यस ये काम करते वक्त मुझे ये तकलीफ हुई. तो वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एवरी टाइम. एनी काइंड ऑफ वर्क, न्यू वर्क में आप करते हो तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. देन सम नेचुरल एबिलिटीज आर देयर. सारी चीजें तो अवेलेबल है ये नेचुरली. हमें सिर्फ क्या करना है, ब्रेन को यूज करना है और उस वर्क को सिस्टमैटिकली प्रोसेस करना है. Explicit knowledge, every day you explicit your knowledge, you share your knowledge, you just work out on it, learn something new every day. Okay, so that is most. Explicit knowledge requires access to large amount of information. Tactic knowledge is obtained through observation, mentoring, collaboration, etc. Right? So that is key. Observation is always give us the clue, है ना. ऑब्जर्व करने से हमें पता चलता है कि इसमें क्या है एग्जैक्टली. सो ऑब्जर्व करिए उसे. जस्ट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली, है ना. नेक्स्ट, general decision styles, general decision making style. It's based on how one perceives and comprehends stimuli and choose to respond, है ना. बहुत सारे प्रॉब्लम्स या वर्क या असाइनमेंट ऐसे होते हैं कि जो मतलब क्रिटिकल होते हैं, है ना. अगर आप नए हैं और आपको बहुत बड़ा शिट दे दिया कि आपको इस पे वर्क करना है तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये क्या है ना. उसको कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा कि कहाँ से आया है, कौन क्या है, कैसे कैसे है. एंड ऑन दैट बेसिस आप उसको रिस्पॉन्ड करोगे अगर आपको समझ में आता है तो. जैसे आई एम आस्किंग लॉट ऑफ टाइम, डू यू अंडरस्टैंड, एनीवन आस्क टू एनी क्वेश्चंस, राइट. सो मुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं जो भी पढ़ा रही हूँ या जो भी आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉम्प्रिहेंड. तो आप भी जब कोई काम करते हो तो उसे समझने की कोशिश करिए और उसके बाद उस पर डिसीजन. क्योंकि हर टाइम पे मतलब एवरी टाइम हम सेम डिसीजन नहीं ले सकते और ना ही होता है. सबका डिसीजन अलग अलग होता है. मिनट में एवरी मिनट में हमारा डिसीजन चेंज होता रहता है.
है ना, बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल्स, lot of वे आते हैं. सो उस सिचुएशंस को देख के हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं कि यस विल फिनिश. इफ यू आर वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, योर बॉस आस्क यू यस फिनिश द वर्क, काम हो गया है कि नहीं, आप बोलेंगे नहीं सर हो रहा है, सर आज हो जाएगा, राइट. सो यू रिस्पॉन्डेड वॉट एवर द एग्जैक्ट फैक्ट, राइट. Now, value orientation, task and technical concerns of people and social concern. Yes. जो भी टास्क है, टेक्निकल है, पीपल से रिलेटेड है, ग्रुप्स टीम के साथ हो रहा है, तो वो कंसर्न करता है कि उसका वैल्यू ओरिएंटेशन कब होगा, मतलब वो काम कब होगा, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क, है ना. तो थोड़ा टाइम लगता है, सबका जो स्टाइल होता है काम करने का, डिसीजन मेकिंग का, वो डिफरेंट होता है. सो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के पास डाटा नहीं है, किसी का स्पीड नहीं है, किसी का फॉर्मूला गलत हो गया, whatever, lot of concerns are there. ठीक है. टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, नीड ऑफ स्ट्रक्चर और कंट्रोल. यस, हमें बहुत बार हमें टॉलरेंस किया जाता है, कि टॉलरेट किया जाता है कि ये करना है, अभी करना है, अभी तक नहीं हुआ, कब होगा, कितने बजे होगा. सो इट्स रियली डिफिकल्ट, बट वी लर्न समथिंग न्यू, क्योंकि इफ यू डू नॉट फॉलो द टाइम, अगर आप कोई भी काम के लिए टाइम या टारगेट नहीं रखते हो, दैट मीन्स कि आपका, दैट मीन्स कि आप इम्पेशंस हो, आप परफेक्ट नहीं हो, ऐसा होता है. सो ऑलवेज बी मेक perfect and need sorry and try to fulfill your work on time. कंट्रोल भी होना चाहिए, हर काम में कंट्रोल होना चाहिए कि yes, first we need to work on this and after that we fulfill that kind of. Okay, so tell me what is control exactly. कंट्रोल किस किस चीज में होनी चाहिए, एनीवन बताइए. कंट्रोलिंग मीन्स क्या होता है, क्योंकि इसके बाद का जो यूनिट है हम कंट्रोलिंग पे ही जाएंगे. तो जस्ट आस्क वन और टू वर्ड, जस्ट मुझे बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली कंट्रोल. यस, एनीवन. हेलो, Controlling on our discipline. यस, ओके. अगर यस, ट्रू, कंट्रोल, एक्सक्यूज मी. सो कंट्रोल के भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है, क्योंकि हर वे में कंट्रोल जो होता है वो डिफरेंट होता है ना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये एक फनी एग्जाम्पल है, जैसे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना, आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, बॉस आपको बहुत बार बोल रहा है करो करो, और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मन में ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूं, बट आप क्या करते हो, कंट्रोल करते हो. आप नहीं चाहते कि आप वो कुछ करे, है ना. तो अपने आप पे, और आप फिर बोलते हो कि यार मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था बट मैंने कंट्रोल किया, राइट. बट ये आपका मेंटल कंट्रोल है. वर्क में, ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग में भी कंट्रोल कैसा होता है, जैसे मशीन से प्रोडक्ट निकाल रहा है, आप बना रहे हो, उसमें कंट्रोल होना चाहिए कि इतने मिनट में इतना ही है, आना ही चाहिए, दैट इज कंट्रोल. आप काम कर रहे हो, आपका आपके काम पे कंट्रोल है, मींस कि आपने एक टाइम डिसाइड किया है और उसी टाइम में उसे कंप्लीट कर रहे हो, मतलब यू मेंटेन योर कंट्रोल, राइट. कहीं जाना है, आपने टाइम स्पेसिफाई किया कि मुझे बरोबर पंक्चुअल वहां पे पहुंचना है, मींस you are punctual, means you have a good patience and good control on your whole uh, task, whatever the routine, right. So मीन्स आप एक्टिविटी भी कर रहे हो, लेकिन सारी चीजें कंट्रोल में, सारी चीजें पेशेंस के साथ कर रहे हो, गुड पेशेंस है. आपने डिसाइड किया कि ये काम यहाँ से यहाँ तक ही होना चाहिए, आपने करके दिखाया. आज आपने बोला कि ये स्टडी है, मुझे ये करना है, फुलफिल, कंट्रोल. मतलब क्या है
कि आप खुद प्लान कर रहे हो, खुद डिसाइड कर रहे हो कि आज मुझे इतने बजे उठ के ये काम इतने बजे तक कंप्लीट करना है, मींस यू हैव अ प्लान, यू टेक अ डिसीजन and with good control, good patience, you fulfill the same thing. समझ में आया कि मतलब हम कोई भी काम करते हैं तो इन सारे काम में ये सारी चीज पर स्पेशली डिसीजन मेकिंग का कितना बड़ा रोल है. मीन्स यू डोंट जस्ट डिसाइड, decision is whatever you decide doesn't matter, but you fulfill that kind of task. आपने जो काम किया डिसीजन लेके उस पे इम्प्लीमेंट किया उसके सारा, सो दैट इज वेरी गुड, दैट इज द कंट्रोल. मतलब आपका आपके बॉडी पे, आपके माइंड पे, आपके वर्क पे कंट्रोल हो गया है. एंड स्लोली स्लोली ये प्रैक्टिस आपको क्या बनाएगी, एक दिन एक्सपर्ट बनाएगी. गॉट इट? सो जनरल डिसीजंस आप जब भी लेते हो कि नहीं ये आपको करना है और उसे इम्प्लीमेंट करते हो और उस पर कंट्रोल करके जब उसे फुलफिल करते हो तो उस पे जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, दैट इज गुड. एंड इट्स अ प्रैक्टिस. प्रैक्टिस होने के बाद वही चीज आप रूटीन में लेते हो तो उस पर आपको डिसीजंस या फिर वो, क्योंकि वो आपके माइंड में रहता है, क्योंकि वो डेली रूटीन है और आपका उस पर कंट्रोल है कि और आज डेली डेली आप उस टास्क को सेम टाइम पे कर रहे हो, सेम टाइम पे सेम कंट्रोल के साथ सेम डिसीजन. राइट? सिर्फ जब नया कोई काम आ जाता है या नई कोई एक्टिविटी आपको करने को लगाते हैं, दैट टाइम यू कंफ्यूज बिकॉज यू डोंट हैव एन आइडिया. राइट? फिर आप उस पर प्लान करते हो, फिर डिसीजन लेते हो और उस डिसीजन पे जरूर नहीं आज ही होगा, उसे टाइम लगता है. लेकिन एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है, एक बार आपको पता चलता है द वे ऑफ वर्किंग, द वे ऑफ स्टाइल, देन सेम थिंग यू डिड, सेम टाइम, सेम कंट्रोल, सेम पेशेंस एंड ऑल. और ये जो काम आपने किया है उसे आपको लोगों के साथ भी शेयर करना है, आपका रूटीन बताना है कि आप किस तरह से उसे किया है, तो वो भी सामने वाला बंदा उससे अच्छा करेगा या वो सेम टाइम पे उसे करेगा. Got it? So that is actually control. हम लोग यूनिट 5 में देखेंगे कंट्रोलिंग. यहाँ पे आया इसलिए मैंने बताया. नेक्स्ट, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, व्हाट इट इज. जब मार्च एंडिंग होता है स्पेशली, या कोई भी काम जैसे इवेंट मैनेजमेंट वगैरह होता है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस की और डिसीजन मेकिंग तो लगता ही है, नो इशू, बट टाइम बाउंडिंग होता है तो उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस लगता है वो काम को करने के लिए. सो टॉलरेंस भी होता है पीपल पे, ये करो वो करो, अभी करना है तब करना है, ऑल एंड ऑल. So here we have seen some decision making styles. Here is analytical, conceptual, directive and behavioral. Okay. So यहाँ पे जो दिया है एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल को हाई क्वालिटी डिसीजन मेकिंग स्टाइल में डाला है. ठीक है. एनालिटिकल बिकॉज हाई क्वालिटी मींस एनालिटिकल है ना, इतनी जल्दी नहीं होता, उसको बहुत एनालिसिस करना होता है. कंसेप्चुअल, बहुत सारी कंसेप्ट एक ही साथ में आपको 5 या 6 या 10 इंफॉर्मेशन होती है और हर ऑल 10 इंफॉर्मेशन के जो कंसेप्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और उन सारे कंसेप्ट को आपको एक साथ मिक्स करके उसका एनालिसिस करना होता है. जैसे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको पता होगा, डाटा एनालिसिस, और उसमें जब हम वर्क करते हैं, है ना, तो उसका जो रिजल्ट निकालना होता है तो ऑल कंसेप्ट उसके हाइपोथेसिस होते हैं और ऑन दैट हाइपोथेसिस वी नीड टू डिसाइड व्हिच वन इज बेस्ट. और उसको अगर सही है तो क्यों सही है, जीरो आया तो क्यों जीरो आया, माइनस आया तो क्यों पॉजिटिव आया, निगेटिव आया. सो वी नीड टू प्रूव इट. बहुत ये होता है तो उसको हाई इसमें डाला है. आप बीआरएम अगर होगा आपका चालू तो आपको बताया होगा बेसिक जो आप पढ़ रहे हो उसमें. सो डायरेक्टिव एंड बिहेवियरल को लो टास्क में डाला हुआ है, मतलब लो मेकिंग स्टाइल में, बिकॉज डायरेक्ट करना मीन्स प्लान करना एंड बिहेवियर मीन्स वर्कआउट करना, उस पर सोचना. सो ये तो नॉर्मल है, हम कोई भी टास्क के लिए ये यूज करते हैं. नाउ टास्क एंड टेक्निकल कंसर्न्स, ये एनालिटिकल एंड डायरेक्टिव जो है ये रिलेटेड टू टास्क एंड टेक्निकल कंसर्न. किस टाइप का टास्क है और टेक्निकल क्या नॉलेज उसमें लगने वाला है.
कंसेप्चुअल एंड बिहेवियर में पीपल एंड सोशल कंसर्न, ठीक है। इसमें हमें कंसेप्चुअल वर्क करने के लिए हमें पीपल स्टाफ की जरूरत है, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया इंफॉर्मेशन लगेगी हमें उस टास्क को करने के लिए, एंड बिहेवियर क्योंकि हर एक का अलग अलग बिहेवियर रहेगा, सो हाउ विल दे परफॉर्म, राइट। सो दैट इज द मॉडल, एंड इसका वैल्यू ओरिएंटेशन हमें रिजल्ट जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा ऑन टाइम पे, तब हम उसका वैल्यू ओरिएंटेशन निकालेंगे कि नहीं ये वर्क इस तरह से हुआ है एंड इसका ये वैल्यू ओरिएंटेशन मींस टाइम बाउंडिंग। यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि जो टाइम पे दिया था उस टाइम पे हमने उसे फुलफिल किया या ऑर्गेनाइजेशन ने फुलफिल किया, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट इसमें डेट्स होती है और उस डेट्स में उसको सबमिट करना होता है ना। हम काम क्यों करते हैं, डेडलाइन होती है ना, डेडलाइन को फुलफिल करने के लिए हमें इतने हाई क्वालिटी के वर्क करने होते हैं, इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो, है ना। बिग ऑर्गेनाइजेशंस ऑलवेज यूज बिग एंड न्यू एडवांस सॉफ्टवेयर बिकॉज ऑफ द वर्क कंप्लीटेड ऑन टाइम, डेडलाइंस फुलफिल ऑन टाइम, जो भी टारगेट्स जो भी डेडलाइंस है वो, इसलिए कंपनी बोलती है कुछ भी करो लेकिन ये काम आज होना चाहिए ऑन टाइम पे, है ना, फिर डेडलाइंस होती है। समझ में आया डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स। बहुत टॉलरेंस होता है, बहुत मतलब करना ही है, हम लोग रात भर दिन भर जाके सारे काम छोड़ के उसी काम पे लगे रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि व्हाट इज योर डिसीजन मेकिंग स्टाइल, विच काइंड ऑफ स्टाइल यू हैव टू यूज टू fulfill your task and assignment. So which of the four style best represents your decision making style, which is at least reflective of your styles, right? So how do your score compare with the following norms? Like directive अगर है तो 75% आएगा, analytical है तो 90%, conceptual है तो 80% and behavioral है तो 55%. So ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं कि आप किस स्टाइल्स के साथ काम करना पसंद करते हो, अगर आप कर रहे हो तो किस तरह से आप फॉलो कर रहे हो, कौन सा स्टाइल आप यूज कर रहे हो, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ योर डिसीजन मेकिंग स्टाइल, ठीक है। ये जनरल क्वेश्चंस है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए, राइट, सो आप अच्छे से इलेबोरेट कर सकेंगे, यू इलेबोरेट वेरी वेल व्हिच वन इज गुड, राइट। Escalation of commitment, what it is: tendency to stick to a course of action even when it is associated with and unlikely to reverse a bad situation, है ना। उस दिन जब हमने एक छोटा सा ये लिया था ना डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाट इज डिसीजन एंड ऑल, so lot of people are not means confused, but today I hope ki we have yesterday also we have seen what kind of decisions and अभी भी हमने ये सब देखा कि किस तरह से हमें डिसीजंस लेना है, तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा मे। Now the escalation of commitment, tendency to stick to a course of action even when it is associated with and unlikely to reverse a bad situation. हाँ होता है, sometimes it's happen ना कि we just plan and lot of time our plan is failed because of some kind of work is there, every day it's happened. So psychological and social is important. कभी कभी हम मेंटली भी प्रिपेयर नहीं होते, बहुत वर्क हो जाता है, so we just skip our plans, we just postpone our plans. So bias facts to support the decisions, recover losses more attractive than achieve gains, and ego factor इस तो रहता ही है कि भाई मैं ही करूंगा, मुझे ही आना चाहिए, मैं ही करूंगा, so you just spend your holidays Sundays and all कि नहीं मुझे करना ही है, मुझे कंप्लीट करना ही है, so that kind of decision मतलब आपने सोच के रखा है कि ये 2 दिन में कंप्लीट करना ही है। देन ऑर्गेनाइजेशनल इंटेरियर मतलब वो तो रहता ही है सभी ऑर्गेनाइजेशंस में, एक वर्किंग का जो स्टाइल होता है, क्यूब में बैठना, सारी फाइल्स उस पे वर्कआउट करना, राइट। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, कॉन्टेक्चुअल्स
डिटर्मिनेंट्स आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशंस. सो ये सारे बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं वर्क में कि ये करना है, वो करना है, आज इसे फुलफिल करना है, इसके साथ मीटिंग है, ये डिस्कस करना है, इस पे प्लान है, इस पे वर्कआउट करना है, आज ये शीट फिनिश करना है, इसे सबमिट करना है. बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, बट ऑल कमिटमेंट नॉट फुलफिल एट ऑन अ डे, है ना. वी नीड टाइम and work out it. We plan it and then we'll fulfill and submit it. And after that, you fulfill our commitment. कभी कभी हम कमिट करते हैं कि आज ये हो जाएगा, but due to some reasons, due to some cause, we are not fulfill our commitment. But the pending and one day lot of commitments we have and we are working on that, right? So commitment करिए, लेकिन उसे फुलफिल भी करिए टाइम देके. Now skills and best practices, recommendations to reduce escalation of commitment. So always who's there, किसका आवाज आ रहा है ये? Just unmute your mic. So skills and best practices, recommendations to reduce escalation of commitment. What we do for that? So set minimum targets for performance and have decision makers compare their performance with their targets. जो भी है काम, बहुत सारा काम मत लीजिए, लिमिट में काम करिए और उसी काम को, एक एक काम को आप फुलफिल करने की कोशिश करिए. सो सेट मिनिमम टारगेट्स फॉर परफॉर्मेंस एंड हैव डिसीजन मेकर्स कंपेयर्स देयर परफॉर्मेंस विथ दीज टारगेट्स. ओके, एंड जस्ट उसी पे फोकस करिए फर्स्ट. देन have different individuals make the initial and subsequent decisions about the project. If you are working in project, so whatever the deadlines, whatever the targets, you fulfill it. Individually भी आप इसे सोचिए, decisions लेते हैं, proper decisions लीजिए and fulfill the project on time, right? Initiative is most important. आप अपना खुद का effort कितना दे रहे हो, 5%, 10%, 15% or 50%. So that is most important, right? Encourages decisions makers to become a less ego involved with the project. खुद को भी encourage करिए, और जब हम डिसीजन लेते हैं तो यस, यू जस्ट मोटिवेट की लाइक दैट कि यस मैं ये करूंगा और मुझसे होगा. डोंट शो योर ईगो. अगर आपका ईगो आ जाता है तो वो काम कंप्लीट ही नहीं होगा. और अगर आपने कंप्लीट कर भी लिया, अदर्स ने नहीं किया, हमें आदत होती है ना कि नहीं हमें दिखाने की हमारा काम हो गया है ना. बट ऐसा मत समझिए, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, बहुत सारे करेक्शंस होते हैं. सो यू जज इट, यू जस्ट चेक आउट इट, राइट? अगर आपको नहीं आ रहा है तो सामने वाले को भी बोलिए कि इसे आप चेक करिए. Then provide more frequent feedback about project completion and cost. Every day अगर आप अपने काम का फीडबैक देते हो, रिपोर्ट लिखते हो डायरीज में कि कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, कल किस पे वर्कआउट करना है, कैसे करना है, सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अभी जो वर्किंग स्टाइल है ना, जब से ये डिजिटाइजेशन आ गया है, तो अपना जो वर्किंग स्टाइल है चेंज हो गया है. बट वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया है मीन्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि काम स्पीड से हो रहा है, लॉट ऑफ वर्क भी हमारे पास है, बट टाइम मैनेज नहीं हो रहा है. सारी चीजें हमें आती है बिकॉज एवरीवन आर यूनिक. सभी आप लोग सभी बहुत ही अच्छे, मतलब इसमें हो, एडवांस टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हो, और एवरीवन, मैंने देखा है कि सबको सब आता है. हाँ, समवन इज कहीं तो भी लैक ऑफ लाइक कम्युनिकेशंस, बॉडी लैंग्वेज, एवरीवेयर, वो सारे नॉर्मल, आपको उसी पे वर्कआउट करना है. लेकिन काम करने का, जैसे मैंने आप लोगों को टास्क दिया था कि आपको एक्टिविटीज बनानी है, पीपीटीज बनानी है, यस यू आर डूइंग वेरी वेल. आपको पता है, आपको समझ में आ रहा है सब्जेक्ट क्या है, मैम क्या बोल रही है, एवरीवन नो, और आप कर भी रहे हैं. सो दैट इज गुड थिंग. मतलब आपका टाइम ऑफिस करके, लेक्चर्स अटेंड करके, देन ये सारी एक्टिविटी पे यस टाइम लग रहा है आपको. मैंने बोला था कि 2 वीक पे होना चाहिए, नहीं हुआ, इट्स ओके फाइन, बट
हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट. आप कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उस चीज पे, दैट इज इम्पोर्टेंट. वेरी गुड, वेरी नाइस. सो टाइम मैनेज नहीं हो रहा है. अभी जो हम वर्क कर रहे हैं, हमारा जो स्टाइल है उसे हमें चेंज करना है. चेंज करना है मीन्स क्या करना है? हमारे अंदर, आपके आप में जो भी लैक्स ऑफ है, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स का, लाइक बॉडी लैंग्वेज का, लाइक फ्लुएंसी का, उसे आपको ज्यादा समय देना है, उसे आपको वर्कआउट करना है, उसके लिए डिसीजंस लेना है और उसे इम्प्रूव करना है, जिससे आपका, आपके ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस बेटर हो. स्पीड के साथ वर्क करना है, ऑलवेज फोकस करना है. मतलब अगर आप चाहो तो 1 मिनट में भी सॉरी, 1 मिनट में भी उस काम को कर सकते हो, बट कब? अगर आपने फोकस प्रॉपर किया तो. आने दीजिए, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारी चीजें काम को लेके उसी को कंप्लीट करिए. अगर आपने ये वे फॉलो किया ना अभी, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी में, सो डेफिनेटली विद इन द डे आप 10 से 15 टास्क कंप्लीट करेंगे. 10 से 15. और संडे सिर्फ रेस्ट कीजिए, माइंड को थोड़ा सा पीस दीजिए. बट एवरी डे यू जस्ट वर्क ऑन, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी में स्पीड बहुत है ना. सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती है एक बटन प्रेस करने से, यू नो एवरीथिंग. सो जस्ट फोकस्ड, just concentrate, just increase your speed, but only not work out it. Perfection is most important. आपका हर काम में परफेक्शन भी उतना ही सही आना चाहिए. गॉट इट? सो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होगी. रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेनल्टीज ऑफ फेलियर. हाँ ठीक है, एक बार फेल हो गए, 2 बार, बट उसे रिड्यूस करिए. कम से कम समय में उस काम को परफेक्ट करने की कोशिश करिए. फेलियर हुआ है, डजंट मैटर, फिर से करिए, अच्छे से होगा. अगर पहले जब स्टार्ट किया था उसे 10 मिनट लगे थे, तो नेक्स्ट टाइम आपको 5 मिनट में हो जाएगा, बिकॉज यू नो हाउ टू डू इट, राइट. एंड मेक डिसीजन मेकर्स अवेयर ऑफ द कॉस्ट ऑफ परसिस्टेंस, राइट. अब जब भी आप डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके टाइम का भी कॉस्ट ऑफ मैनेज, कि आपका वैल्यूएबल टाइम उस चीज में जा रहा है. सो जब आप कोई बड़ी पोस्ट पे काम करते हो तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. लॉट ऑफ टाइम पीपल सेड कि यार आई हैव 5 मिनट्स टाइम, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर ऑन इट. 5 मिनट तो 5 ही मिनट में वो फिनिश करेंगे. सो यू वैल्यू ऑन दिस टाइम, right? So always aware about the facts of organizations or any kind of assignments, and you work on it properly. Okay, so that is the best practices to improve your skills, to complete your commitment. So tomorrow we'll start next. Okay, so today is enough for you. And today is your SAP training at evening 6 to 8 a.m. So everyone join this training. Okay. After fulfill, after finishing the training, then you ask the questions. Okay. Don't ask any question in the middle, in between the lectures, especially SAP. Okay. Anyone want to ask any questions? समझ में आया क्या? Yes, am I audible? Hello. Yes, ma'am. Okay. So see you tomorrow. And today evening also.